class. Now in this lecture we will start with our new topic, that is vapor power cycle. Okay, we'll start with the new topic, that is a vapor power cycle. Vapor power cycle. Okay, in the previous lecture we have gone through the air standard cycle and how the power get developed by using air standard cycle. We have gone through it. In that we come across the Otto cycle, we come across the dual cycle and the diesel cycle, and how they are utilized or how they follow to kind of develop a power. We have come across it, and even though we have gone through some numerical on the basis of the diesel and Otto cycle, now you see a vapor power cycle. Now the name itself indicating a vapor power cycle means by using the vapor. Okay, by using vapor we supposed to calculate, we supposed to calculate, or we supposed to extract a power from the vapor. Okay, so for that purpose, first we can vapor power or steam power cycle. You can also call it a steam power cycle, vapor or a steam power cycle. So before starting with this new topic, first of all we must know what is a pure substance. ओके, सो तो प्योर सब्सटेंस वो चीज़ होता है इफ जब हम किसी सॉलिड के बारे में सोचते हैं, सो बेसिकली हमको पता है बेसिकली 3 फेजेस होते हैं किसी भी सब्सटेंस के. ओके, सो द मेन 3 फेजेस लाइक सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड गैस. इसको बोलते हैं हम फिजिकल कंपोजिशन. Okay, so there are 3 physical composition exist by almost every substance exists in the atmosphere. So they may have a solid state also, they may have a liquid state also, and they may have also gaseous state also. But these are the these are the physical state, not representing a chemical composition of this that particular substance. Means solid, liquid, and gas representing of physical composition. Okay, physical composition or physical state of that particular substance, but it not representing a chemical composition. Okay, so the pure substance are such a substance whose chemical composition is also remains same or unchanged, whether they are changing from solid to liquid or liquid to solid or solid to gas or gas to liquid. Mean to say कि कोई भी फेज रहो, कोई भी फिजिकल कंपोजिशन रहे उस सब्सटेंस का, देन आल्सो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, देन सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ प्योर सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर, ओके, वाटर का सॉलिड स्टेट होता है आइस, उसका लिक्विड स्टेट होता है दैट इज वाटर. ओके, लिक्विड वाटर बोल सकते हैं, और गैसेस होता है स्टीम और वेपर. ओके, सो वो किसी भी फेज में रहे, वाटर किसी भी फेज में रहे, हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. सो H2O, ये जो हमारा केमिकल कंपोजिशन है वाटर के लिए इन एनी फेज. हाँ, डेंसिटी चेंज हो रहा है. अगर हम फिजिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें, सो डेंसिटी चेंज हो रहा है. आइस का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, और स्टीम और वेपर का डेंसिटी उससे भी कम है. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आइस का डेंसिटी वाटर से कम है, इसकी वजह से आइस वाटर पे फ्लोट हो रहा है. स्टीम और वेपर का डेंसिटी आइस से भी कम है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली फ्लोट इन एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज द थिंग which, so the chemical composition of this water is remains same. H2, it won't change. This is the chemical composition. हाँ, physical composition के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो आइस का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी, और स्टीम और वेपर का डेंसिटी मैटर करता है. So physical composition, whether physical composition changes, but then also the chemical composition of this substance is remain H2O. Okay, so we can say a water is a pure substance. Okay, it is a pure substance. Now we'll come we go further for this. This is the first topic before starting vapor cycle, that is pure substance. Now we will start with the phase transformation. Okay,
So this is a vapor power cycle. We have to focus on the water only. Water as a substance we are considering. In case of the air standard cycle, we was consider air as a working medium. Right? So by using air power, we supposed to develop a work. We supposed to develop what we can say power. Okay, and that power we utilize to take a work output. Okay, so similarly in case of the vapor power cycle also we are considering water as a working substance. So phase transformation of water we have to study. Okay, phase transformation. Okay, so phase transformation is a very important question. That is how phase transformation take place, or what are the different phases are there in case of. So phase transformation of water is supposed to study over here in order to understand the vapor power cycle. Okay, so here I will draw a plot, that is temperature versus enthalpy plot I am supposed to draw over here. Okay, so this is this vertical axis representing the temperature, and this horizontal axis will represent the enthalpy. Okay, so this is the enthalpy. Consider there is a ice which is present at -5 degrees Celsius. Okay, so this is a -5 degrees Celsius का ice अपने पास है. Okay, while transforming this thin ice to water, water to steam, okay, it will have some range of temperatures. Okay, means -5 to 0 degrees Celsius, then 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. It have some ranges, and how it behave, that we will see. Now consider 1 kg of ice, 1 kg of ice at -5 degrees Celsius. Okay, is present with us, and this ice supposed to convert into steam. -5 degrees Celsius, 1 kg of ice at -5 degrees Celsius is present with us, and it's supposed to convert into steam or vapor, is called as a phase transformation. अभी ये जो phase transformation है ये दो वे से हो सकता है. एक स्लो रेट ऑफ phase transformation एंड दूसरा होता है हाई रेट ऑफ phase transformation. So before going to this graph, we will see what are these two type of phase transformation. Okay, so suppose हमें phase transformation करना है. The type of phase transformation, you say type of phase transformation. Type of phase transformation. टाइप ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. दो टाइप के फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, वाटर के या आइस के, स्टीम और पेपर में. सो पहला हो सकता है बाय इवेपोरेशन, और दूसरा हो सकता है बॉइलिंग से. अभी आप बोलोगे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग इज 1:1. इसमें बॉइलिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इवेपोरेशन, and evaporation is a natural thing, and boiling is the artificial or natural also. So some natural boiling also take place, or man or human being made boiling also there. So it may be artificial or natural, and this is only natural. Okay, ये तो है क्लासिफिकेशन कि evaporation सिर्फ natural होता है, कोई man made evaporation नहीं हो सकता, और boiling है ये natural भी हो सकता है और man made भी हो सकता है. बट एक्चुअल डिफरेंस क्या है? अभी जब एवेपोरेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक पॉन्ड है या कुछ लेक है, वो गर्मी में फटाक से सूख जाती है. जैसे बारिश में पानी पड़ता है, बारिश में पानी पड़ने के बाद लेक जो होता है तो लेक भर जाता है, और बारिश के बाद आता है विंटर. विंटर में थोड़ा पानी कम होता है, उसके बाद समर आता है, समर में पूरा पानी कम हो जाता है. सो जो एवेपोरेशन है, समझिए लेक है और ये लेक में वाटर है,
और सूरज जो सन रेज रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उसको क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। अब विंटर में जो सन रेज का टेम्परेचर रहेगा वो कम रहेगा, सो विंटर में पानी का एवेपोरेशन रेट वो कम रहता है। जैसे ही समर आ जाएगा, समर में कंपैरेटिवली विंटर जो टेम्परेचर रहेगा एटमॉस्फेयर का वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओके, एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, द एवेपोरेशन रेट और द हीट provided by sun rays to the surface of water present in the lake is too much. So जो भी evaporation होगा सरफेस के ऊपर जो वाटर रहेगा उसका जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका evaporation होगा फास्ट में। So rate of evaporation will be more during summer, and during winter the rate of evaporation is less, but evaporation होगा, हर टेम्परेचर पे evaporation होता है, बट उसका रेट मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम एक्सपोज करते हैं सरफेस वाटर के सरफेस के ऊपर उतना रेट ऑफ एवापोरेशन एक्सेलरेट होता है। सो समर में कुछ ज़्यादा रहेगा सरफेस को ऑफर किया हुआ हीट सन रेज ने, और उसकी वजह से उस टाइम में जो फेज ट्रांस, अभी यही बात इसके आइस के साथ भी होगा। समझो ये लेक है जो विंटर में पूरी तरह से क्या बोलते हैं आइस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और जैसे ही समर आने को स्टार्ट होता है वो आइस पहले मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होने के बाद वो वाटर में जाता है, वाटर के बाद कुछ टेम्परेचर बढ़ गया समर के साथ मंथ के साथ साथ, तो वो वाटर फर्दर वो वेपर में कन्वर्ट होके स्काई में चला जाता है। ओके, सो दिस इज अ फेज ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन बाय नेचुरल मेथड। ओके, बट ये जो होता है ये सरफेस टू सरफेस होता है। अभी जो से पहला सरफेस का लेयर अगर चला गया वेपराइज होके, तो दूसरा जो लेयर होता है उसका एडजेसेंट इट विल कम इनटू द पिक्चर फॉर द फर्दर इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, बट इन केस ऑफ द बॉइलिंग, अगर हम बॉइलिंग कर रहे हैं, बॉइलिंग दो टाइप के बोला था ना, बॉइलिंग नेचुरली भी हो सकता है, तो बॉइलिंग हम आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड भी हो सकता है। तो समझो बॉइलिंग के टाइम हम क्या करते हैं, जो भी सोर्स ऑफ वाटर है या जो भी वाटर का रिजर्वायर है, वो लेक नेचुरल रिजर्वायर है या नेचुरल रिजर्व, अगर नेचुरल बॉइलिंग होगा तो नेचुरल रिजर्वायर के नीचे वॉल्केनो वगैरह की वजह से बॉइलिंग हो सकता है। ओके, या अनदर नेचुरल कंडीशन हो सकता है। अगर मैन मेड बॉइलिंग है तो समझो ये जार है और जार के नीचे मैंने फायर अलाउ किया है, ओके, विद द हेल्प ऑफ बर्नर। अभी ये जब बॉइलिंग हो रहा है तब क्या होता है, दिस इज अ सरफेस, वी कैन से दिस इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, क्योंकि ये सरफेस बाय सरफेस काम कर रहा है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। बट ये जो बॉइलिंग है, ये बॉइलिंग थ्रू आउट होल मास, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस पॉट, हीट गेट एब्जॉर्ब। सरफेस पे तो हीट एब्जॉर्ब होता ही है, सरफेस पे भी हीट एब्जॉर्ब होगा। एवरी मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द जार स्टार्ट टू एब्जॉर्ब अ हीट, एंड एट एवरी पॉइंट इन द जार स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर। मतलब ये समझो आइस रहा, एक 1 kg आइस अगर हमने जार भी लिया है, तो ये 1 kg आइस पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और फर्दर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद, फर्दर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो वेपर या स्टीम में कन्वर्ट होगा। सो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू सरफेस, इट इज लिमिटेड टू होल मास। एट एवरी कॉर्नर ऑफ दिस जार all the molecules supposed to absorb the heat and start to convert into what we can say vapor, or this phenomenon is called as a phase transformation. So by evaporation or by boiling, ये दो वे से हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बट जो एवेपोरेशन होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्वासिस्टैटिक प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको। बट जो बॉइलिंग है इट सडन प्रोसेस। ओके, इतना हम हीट ज़्यादा देंगे बर्नर से इस जार को, उतना ही जो बॉइलिंग प्रोसेस है एक्सेलरेट होगा। अभी ये बॉइलिंग प्रोसेस अगेन डिपेंड करता है कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वाटर के सरफेस के ऊपर। अगर वैक्यूम में अगर हम बॉइलिंग करेंगे
देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम वैक्यूम में बॉइलिंग कर रहे हैं इस वाटर का, सो वाटर ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही बॉईल हो जाएगा, मतलब कुछ 60 डिग्री सेल्सियस से वाटर के वेपर बनने को स्टार्ट हो जाएंगे, या उससे भी कम टेम्परेचर पे, या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे ही वाटर वाटर के वेपर बनने को स्टार्ट होगा। पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे हम वाटर के सरफेस के ऊपर, वैसे वैसे ये हो सकता है 100 से 110 या 150 डिग्री सेल्सियस पे भी टाइम इतना टेम्परेचर होने के बाद वेपर फॉर्म हो। अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें हम, दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो वेपर फॉर्मेशन है वाटर के, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेशर कितना अप्लाई है वाटर के सरफेस के ऊपर, वो भी अफेक्ट करता है कि एट व्हाट टेम्परेचर फेज ट्रांसफॉर्मेशन विल इनिशिएट्स। ओके, सो हम अभी जो बात कर रहे हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बात करेंगे। अभी सरफेस प्रेशर या वेपर प्रेशर क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम जस्ट इमेजिन करो कि ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है वो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हो रहा है। ओके, नाउ कम बैक टू द अवर फेज ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ। सो ये है हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, हम बॉइलिंग कर रहे हैं। ओके, बॉइलिंग ही बोलेंगे हम, एवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज वी हैव टू टेक आउट अ यूजफुल पावर फ्रॉम दिस वेपर। सो मैन आर्टिफिशियल प्रोसेस रहा तो वी कैन एक्सट्रैक्ट considerable amount of power, otherwise natural process रहा तो it will not that much efficient. Okay, so we will have a boiling over here, boiling ही करेंगे हम यहाँ। ओके, सो कंसिडर करो कि 1 kg ऑफ आइस हमारे पास है, 1 kg ऑफ आइस एट 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, और उसको स्टीम या वेपर में कन्वर्ट करना है। ये स्टीम एंड वेपर एक दो अलग अलग थिंग है। स्टीम बोले तो स्टीम जो है वो ओडरलेस रहता है और इनविजिबल रहता है, आपको दिखेगा भी नहीं। जैसे आप गैसेस, जैसे आपको हवा दिखती नहीं, वैसे स्टीम भी आपको नहीं दिखेगी। जो अभी स्टीम का अगर थोड़ा भी प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो वो वेपर बन जाता है। वेपर मीन्स जो विजिबल है, जैसे कि आप कोई हॉट लिक्विड रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप चाय का कप देख रहे हो और चाय के कप के ऊपर से ऐसे आपको कुछ फॉगी गैसेस या फॉगी फ्लो दिखता है, दैट इज वेपर। क्योंकि अगर स्टीम का थोड़ा भी टेम्परेचर डाउन हो गया, कुछ टेम्परेचर कम हो गया, तो वो विजिबल होने को स्टार्ट हो जाता है, उसको वेपर बोलते हैं। अगर वेपर को थोड़ा सा हीट कर दें हम, तो वो फिर से स्टीम बन जाएंगे, दैट इज इनविजिबल। ओके, सो स्टीम एंड वेपर में इतना डिफरेंस है। स्टीम एंड वेपर बोथ आर अ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, that is similarity, but only whenever temperature difference take place, जैसे स्टीम को थोड़ा सा ठंडा कर दिया तो वेपर बन जाएगा, और उसको और ठंडा कर दिया दैट इज कंडेंसेशन किया तो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को फर्दर कंडेंस किया तो फिर से आइस बन जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस स्टीम एंड वेपर में हो जाता है, उसके वजह से स्टीम विजिबल होने को स्टार्ट होता है, उसको वेपर बोलते हैं। ओके, दैट इज अ डिफरेंस इन बिटवीन स्टीम एंड वेपर। सो मैं इसलिए स्टीम एंड वेपर दोनों को ऑब्लिक करके यूज कर रहा हूँ। ओके, सो लेट अस कंसीडर कि 1 kg ऑफ आइस हमारे पास है एट उसका इनिशियल टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, कुछ बुक्स में -10 डिग्री सेल्सियस दिया होगा। सो इट्स अप टू यू, एंड फिजिकली अगर हम प्रैक्टिकली देखें इन आवर सिलेबस देयर इज also one experiment present to study a phase transformation of ice to steam. So वो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो हम आइस का टेम्परेचर हमको एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं मिलता, वो कुछ रहता है 1 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हमको मिलता है अगर हम फिजिकली। तो वो क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो होता है वो उसके ऊपर अफेक्ट करता है। सो एक प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट हम अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ 0 डिग्री सेल्सियस या -2 -3 डिग्री सेल्सियस रीडिंग थर्मामीटर में मिल सकता है। बट अगर हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है नाउ राइट नाउ 26 या 35 जो भी रहेगा, अगर उसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको 1 डिग्री या 2 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर दिखाएगा। वी हैव डिड दैट एक्सपेरिमेंट, सो that controlled environment is needed to have a minus reading. Okay, so just imagine कि -5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ये 1 kg आइस इस जार में भरा है हमने, सब आइस का क्यूब्स प्रेजेंट है इधर, और इसको नीचे से हम हीट करेंगे। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, ये उसका स्टैंड है। ओके, सो अगर हम इसको हीट कर रहे हैं,
सो हीट करते करते क्या होगा, ये जो आइस है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, इस हीट रिजर्वायर से या हीटिंग सोर्स से। तो जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो कर रहा है हीट एब्जॉर्ब, और वो आके रुकेगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो आपका पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको मैं बोलता हूँ ए, ये जो पॉइंट है उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल b। सो -5 to 0 डिग्री सेल्सियस it directly proportional temperature change in temperature and change in enthalpy or rise in enthalpy, or we can say this x-axis is directly represent the amount of heat energy कितना हमने इस जार को दिया है। तो this is a amount of heat energy, और इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने दिया इस 1 kg ऑफ आइस को -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर राइज होने की। सो ये जो टेम्परेचर है ये सेंस हुआ, ये हमको दिख रहा है कि -5 से 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये दिख भी रहा है और ये थर्मामीटर से सेंस भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इस हीट जो हीट हमने इस आइस को सप्लाई किया, 1 kg आइस को सप्लाई किया -5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने के लिए, उसको बोलते हैं हम सेंसेबल हीट। क्या बोलते हैं हम इसे, सेंसिबल हीट, बिकॉज ये हमने सेंस किया। सेंस मतलब दिखा हमें, थर्मामीटर पे हम देख सकते, इसको मेजर कर सकते, तो इसको बोलते हैं सेंसेबल हीट। ओके, नाउ हम फर्दर हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसको हम फर्दर हीट सप्लाई कर रहे हैं हमारे आइस को। ओके, अभी आइस 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, बट जब आप इसमें थर्मामीटर डालोगे, ये सब थर्मामीटर है, ये जब थर्मामीटर आप डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम हीट दे रहे हैं इस जार को, बट जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन है। तब तक मेंटेन है जब तक पूरा आइस जो प्रेजेंट है इसमें वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, सो यहाँ रहेगा सिर्फ सॉलिड स्टेट, पूरा सॉलिड, और पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक आपका रहेगा मिक्सचर सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ आइस गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और यहाँ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर रहेगा, बट थर्मामीटर विल नॉट शो एनी चेंज इन टेम्परेचर, इट ओनली शोइंग अ 0 डिग्री सेल्सियस। सो दैट्स व्हाई हीट एडेड है, एंथैल्पी हम ऐड कर रहे हैं, देखो एंथैल्पी बढ़ रहा है, एंथैल्पी राइज हो रहा है, बट टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा। ओके, टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज नहीं हो रहा, सिर्फ आइस है वो फ्यूज हो रहे हैं लिक्विड में, और जो हमें मिल रहा है दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। बट एट पॉइंट सी, जैसे ही हमारा ग्राफ एट पॉइंट सी पहुंचेगा, एट दैट पॉइंट all the ice get fused into liquid, okay, and after the point C liquid will be there, but जो heat हमने supply किया during this period, जब जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टू that is point B to point C, जहाँ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, बट फर्दर हीट ऐड किया तो अभी भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। तो ये जो रीजन में हमने हीट सप्लाई किया, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ fusion of ice, latent heat of ice fusion। ओके, latent heat of ice fusion, क्या बोलते हैं इसको, latent heat of ice fusion। तो ये जो हीट है ये हम सप्लाई कर रहे हैं, बट थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, वो 0.B टू पॉइंट सी 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, ये इतना अमाउंट ऑफ हीट हमने किसके लिए यूज किया, हमने आइस को लिक्विड में फ्यूज करने के लिए किया, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ fusion। Okay, now we will move further, we are supplying further heat to this ice cube, not ice cube, now at point C हम पहुंच गए तो लिक्विड हो गया सब, अब हम लिक्विड को हीट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एट पॉइंट C, so now your thermometer start to showing temperature rise,
ओके, टेम्परेचर राइज, और वो टेम्परेचर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही अटेंड हुआ, ये जो एक्टिविटी है हम बॉइलिंग का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं, इसलिए हमने 100 डिग्री सेल्सियस कहा यहाँ। सो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंचता है थर्मामीटर का, it will remain at 100 degrees Celsius. Okay, at this point, all the liquid molecule present in the jar are absorbing heat. Okay, are absorbing heat and start to or preparing for to convert a phase from liquid to gas. Okay, so here this is the point is nothing but D is representing फेज ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, एंड सिमिलरली जैसे पॉइंट बी पे वो 0 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन रहा, वैसे ही यहाँ पॉइंट डी पे वो 100 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा। एट पॉइंट डी तक जो भी पॉइंट डी एल सी से लेके डी तक ऑल लिक्विड जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था उसका टेम्परेचर बढ़ते गया और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अभी ये जो पॉइंट डी पे ये पूरा लिक्विड रहेगा, ओके, पूरा लिक्विड रहेगा और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अभी पॉइंट डी पे पहुंचा, अगर हम फर्दर इस 100 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड को हीट दे रहे हैं तो ये लिक्विड उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा बट हीट एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये जो लिक्विड है जो वाटर है वो उसका फर्दर राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा, बट वो क्या कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। बट कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। सो आफ्टर द पॉइंट डी लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर इज देयर, मतलब आफ्टर द पॉइंट डी जब पूरा लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है उसके बाद ही वेपर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है या वेपर फॉर्मेशन या वेपर जनरेशन स्टार्ट होता है। सो फ्रॉम पॉइंट डी टू ई, ओके, फ्रॉम पॉइंट डी टू ई ये जो लिक्विड प्लस वेपर रहेगा आपका, कुछ पार्ट लिक्विड रहेगा और कुछ पार्ट इधर जार के अंदर वेपर के फॉर्म में रहेंगे। तो लिक्विड प्लस वेपर। अब पॉइंट ई तक, ओके, ये जो टेम्परेचर अभी ये जो टेम्परेचर है अगेन ड्यूरिंग दिस डी टू ई यू नॉट और यू आर नॉट एबल टू मेजर एनी चेंज इन टेम्परेचर। सो अगेन इस एंथैल्पी को भी और इस हीट को भी जो भी हमने सप्लाई किया पॉइंट डी टू ई के दरम्यान, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जो हीट हमने सप्लाई किया था ड्यूरिंग द प्रोसेस C to D उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। सेंसिबल क्यों बोलना है हम उसे, क्योंकि वो थर्मामीटर पे सेंस हुआ है चेंजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग that much amount of heat addition, temperature changes is senses in a thermometer, so that's why इसको बोलते हैं sensible heat। ओके, ये हो गया आपका sensible heat। और ये जो हो गया D2E प्रोसेस, ये हो गया latent heat of vapor। at the point E all the liquid present in the jar get converted into vapor। अगर हम इस वेपर को फर्दर हीट करें, ओके, सो ये हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन। जो भी वेपर है उसको हम क्या करते हैं, फर्दर हीट करते हैं, तो उस जो भी हीट सप्लाई करेंगे उस एंथैल्पी को हम बोलेंगे सुपर हीट एंथैल्पी। ओके, वो कितना भी हो सकता है, आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक हीट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगा जहाँ तक आप हीट करोगे। आफ्टर दैट उसको हीट करके फर्दर हीट इनपुट बढ़ाना नहीं है, क्योंकि उससे अगर उतना जितना वर्क निकालना है उतना ही आप उसको फर्दर सुपर हीटेड करोगे। ओके, सो ये हो गया आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये होता है नॉट नेसेसरी इट ऑलवेज स्टार्ट from the minus temperature, sometime it start from the 0 degree. I did this experiment in the laboratory. I noticed, I come across some conclusion while performing this experiment कि atmospheric condition जो temperature रहता है at that temperature you not or never sense a temperature of ice below 0 degree Celsius, and ये जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता ही नहीं, 95 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बोला कि एवेपोरेशन विल स्टार्ट एट low temperature also. Similarly, boiling also, vapor formation while boiling also start from the less temperature also. Okay, but the rate of vaporization or rate of that vapor formation is vary a lot, okay, with respect to the temperature.
सो टेम्परेचर 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता नहीं, उससे पहले 95 या 94 पे वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द थिंग कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही ये थ्योरेटिकल है, बट फिजिकल कंडीशन में अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली इस ग्राफ से मैच करे। बट हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं कर पाते, बिकॉज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बैरियर रहेगा, सो दैट इज अ इशू कि हम इसके समवट नज़दीक पहुंचते हैं इस थ्योरेटिकल वैल्यू के। ओके, सो ये हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। इन सम बुक्स यू विल फाइंड कि ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से भी हो रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हो ये नीचे का जो लाइन है 5 A to B वो अवॉइड कर देने का। ओके, सो ये जो ऑल एक्टिविटी हुआ हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो कर्व है फेस ट्रांसफॉर्मेशन का TH प्लॉट का, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ फेस ट्रांसफॉर्मेशन which we have to understood before starting before going for the vapor power cycle. Okay, now और एक एडिशनल बात बताना चाहूँगा इसमें कि ये जो TH प्लॉट है या इस TH प्लॉट में जो बॉटम में जो H वैल्यू दिख रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस H वैल्यू वी कैन कैलकुलेट कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है फॉर द फ्यूजन ऑफ आइस, कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया है हमने फॉर द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और कितना अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया है कि सुपर हीट होने के लिए। और ये जो बीच वाला जो लैटेंट हीट है, ये तो हमें बाय एक्सपेरिमेंट मेथड से ही निकालना पड़ता है कि कितना टाइम हमने हीट सप्लाई किया। B2C एंड B2E दोज आर द टाइम फिनोमिना, कि कितना टाइम के लिए हमने हीट दिया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइम वी कैन कैलकुलेट कि कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया है। बट ये जो A to B हीट है या C to D हीट है या E to F हीट है, जो दिख रहा है, जो सेंसिबल है, वो हीट हम टेम्परेचर डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ओके, सो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, बट जस्ट फॉर द नॉलेज यू रिमेंबर दैट ये जो सेंसिबल हीट है वो हम सिंपली न्यूमेरिकल में टेम्परेचर डिफरेंस को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल जाएगा। ओके, बट ये जो लैटेंट हीट है उसके लिए हमको टाइम नोट डाउन करना पड़ता है कि कितना टाइम के लिए हमने हीट सप्लाई किया गिवन मास ऑफ क्वांटिटी हीट। ओके, सो दिस इज द थिंग which we have to complete in this lecture, that is phase transformation. Thank you.